By conquering your mind, you can conquer the world. Hello friends, I am Dr. Anita Khatke, Director of Jayawantaraw Sawant Institute of Management and Research, Hadapsar, Pune. I heartily welcomes you on the occasion of 7th International Yoga Day celebration. My dear friends, today we will learn how you can become a good leader through the yoga practice. So, you are the budding managers today, and in organization the managers, the leaders are accountable for organizational success, relations with the customers, with the employees, and also the decision making in the crucial stages. So yoga is helping you to overcome and all these managerial problems and the tasks. So my dear friends, yoga is a combination of physical exercise, that is the asanas, and the mental exercise, that is called as a meditation. And nowadays yoga is worldwide accepted practice for the meditation. Yoga builds the harmony of your mental life, your physical life, your spiritual life, and your social life. So my dear students, yoga is in-depth tool to create the energy, to enhance the energy. It helps to create the things. It helps to mental balance and also physical balance. It helps to rewire your bad habits. It helps to regenerate yourself. It helps to take the sound good decisions. It helps for the good communication. So whatever things we actually need in our working life, yoga is going to help us to become a better managers and better leaders. So dear students, so are you aware one study has been done by the Medical Association through worldwide, and its survey was that which is the best exercise for the best maximum calorie burning. So what they found, 3 exercise. Third exercise is the cycling. Second exercise found to be a best fat burner is a swimming, and surprisingly best fat burner or calorie burner exercise is a Surya Namaskar, which is also called as a sun salutation. So see the importance of yoga, Surya Namaskar and meditation. So I request all the students and all the viewers, spend your at least 10-20 minutes daily, do the yoga and meditation and regenerate your heart and mind and the body. So my dear students, so now Dr. Ravi Joshi, Director, Executive Director, JSPM, will be with you to say few words on this yoga day. Thank you very much. Yoga Karmasu Kaushalam. In English, that means dexterity in action is yoga. Imagine the following: a painter painting his masterpiece, a musician playing on his favorite instrument, a gymnast balancing on a beam, a housewife cooking dinner for the family, a scientist working in his laboratory, and a devotee praying in a temple. What are these? They are not tasks or jobs. They are all performing a form of yoga. Swami Vivekananda said, yoga can be practiced in many ways. There is Raja Yoga,
There is Jnana Yoga, there is Bhakti Yoga, and there is Karma Yoga. What is yoga? Who discovered it? Let us not go into that. Yoga is not a religion. It is a way of living. As management students, how do we look at this? I'll ask you a question. What are the two most important problems that affect your productivity? Can you name them? Well, I can. Number one, the problem is the ability to focus on our work. A concentration. The ability to focus on our work. Number two, the habit of procrastination. That means to keep on postponing the things which we need to do. Isn't it? So these two problems do affect our productivity. There is one simple, time-tested solution for all these two problems, and that is called as yoga. Yoga, according to me, the benefits of yoga are, number one, it improves your posture. The posture is the way you hold your body, the way you sit, the way you stand up, the way you walk, the way you speak to others. So all this reflects your posture. If you practice yoga, the posture, you will be improving your posture. You feel you are walking tall. You hold your body erect. Number two, yoga strengthens your core. What is core? Core is the midsection of your body. It acts as a fulcrum. You can involve in long hours of work, strenuous work, but still feel fresh at the end of it. That is strengthening your core. The regulated breathing helps manage your stress and anger. You become calm and stable. Number four, yoga helps you to balance your physical, mental, and spiritual attributes in your life. This balance is most essential for going ahead in life. And finally, it helps in improving your focus and concentration, which in turn increases your productivity in life. So today, being an International Yoga Day, let us all pledge ourselves a beginning of a new chapter in our life, that we practice yoga every day. Namaste. नमस्ते दोस्तों, दिस इज naturopathy and योग तज्ञ Dr. Shweta Kondekar. Today we are celebrating 7th International Yog Divas. I am really very happy and thankful to JSPM Director Dr. Professor Srimati Anita Khatke ma'am and faculty. They occurred such a helpful awareness program for their students and family. As we all know कि हम एक crucial समय से गुजर रहे हैं because of our रिस्ट्रिक्शंस बाहर जाने के ऊपर, एक्स्ट्रा कैरिकुलम के ऊपर और आउटडोर गेम्स के ऊपर है. तो हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी दिन रात स्क्रीन के सामने बहुत सारा अपना समय गुजारते हैं. उस वजह से दे आर हैविंग सेवरल इश्यूज लाइक फिजिकल एंड मेंटल ऑल्सो. सो वी कैन नॉट अवॉइड ऑल्सो दैट. As we all know that yoga is an ancient science and heritage of our Bharatiya Sanskriti. Because of its benefits, it's accepted by the whole world without any conflict and confusion. Yoga gives you a key to have a wellness. It reduces stress, anxiety, depression, insomnia, complication, trauma somehow. It helps to secrete happy hormones like serotonin, dopamine from your endocrine gland. It gives strength to your physical body. It gives power to your mental body. It gives bliss to your spiritual body.
It gives you strength to your muscles, nourishment to your skin, and gives you a happy, healthy and painful life. 3 things I have to make a note here that you should do before doing the yoga. First is you have to be a empty stomach before going for yoga. Second is if you are having any physical issues, then you should know which asanas you should avoid. For that you can consult to your doctor. And third is whenever you will do yoga, you have to do muscles stretching, warm up exercises before going for yoga. So let's start for today. We will go for 12 to 13 asanas, which is helps and make blood circulation to your all over body, but it's a specially program for students, so I am giving such a key points with this yoga and pranayam. So let's begin with first asanas. So we are going to do first is Tadasana. Whom should do it and whom should not do it, I am explaining before every asanas. So first we are going to do Tadasana. ध्यान रखें कि किसने इसको अवॉइड करना है। तो जिसको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ये आसन अवॉइड करना है। और अगर हम इसके फायदे जानने की कोशिश करेंगे तो टीनेजर्स और बच्चों के लिए ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसके वजह से उनकी हाइट बढ़ने में मदद मिलती है, उनके शरीर में स्थिरता आती है, सहन शक्ति बढ़ती है और शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से फ्लो होता है। तो आइए हम जानेंगे कि ताड़ासन कैसे किया जाता है। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाए, दोनों पाँव को आपस में जोड़ ले, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ ले, स्थिर हो जाए और धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर को एड़ी पर खड़ा करते हुए ऊपर की ओर खींचते जाए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। इस आसन के 10 से 15 आवर्तन आप रोज कर सकते हैं और 10 से 15 सेकंड आप इसी आसन में स्थिर रह सकते हैं। अब हम दूसरा आसन लेंगे जो है वृक्षासन। अब हम जानते हैं कि ये किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनको भी ओबेसिटी यानी मोटापा है या नी में कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर जिन्हें चक्कर आती है, उन्हें ये आसन अवॉइड करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या है। तो पैरों के मसल्स को स्ट्रेंथन देने का काम ये करता है तथा हमारे शरीर में लंग्स को भी कैपेसिटी ये बढ़ाता है। ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करने में मददगार होता है और स्थिरता लाता है। अब हम देखेंगे इसकी आसन की विधि किस तरीके से है। इसके भी 10 से 15 आवर्तन आप रोज कर सकते हैं। शुरुआती अभ्यास में इसमें 5 से 10 सेकंड तक के आपको होल्ड करना है और आगे ये टाइम आप बढ़ा सकते हैं। अभी हम तीसरा आसन करेंगे जो है त्रिकोणासन। पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणासन किसे नहीं करना चाहिए। तो याद रखें, जिनके भी बैक में कोई ऑपरेशन हुआ है या सीवियर इंजरी हुई है जिसको भी बैक में, या फिर सर्वाइकल की या साइटिका की कोई प्रॉब्लम है, उसे ये आसन अवॉइड करने चाहिए। जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या है। त्रिकोणासन में लोअर बैक में, मिडल बैक में या सर्वाइकल या शोल्डर मसल्स में अगर आपको स्पाज्म है तो वो जल्दी ही रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो मेरुदंड है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसमें लचीलापन आ जाएगा और मसल्स को स्ट्रेंथन मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि इस आसन को हम कैसे करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने त्रिकोणासन किया। पहले हमने दाहिनी साइड से किया और फिर इसे हम बाईं साइड से कर सकते हैं। इसके भी 10 से 15 आवर्तन हम एक बार में कर सकते हैं
और शुरुआती दिनों में 5 से 10 सेकंड आप रुक सकते हैं और उसके बाद आपका होल्डिंग पीरियड आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने ये 3 आसन किए। अब सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार, जिसमें कंप्लीट 12 आसन होते हैं, जिसे हम पूरे शरीर का व्यायाम भी कह सकते हैं। ऐसे तो इसको किसको नहीं करना चाहिए, ऐसे तकलीफ नहीं है। एक नॉर्मल टीनेजर्स या बच्चों से, एक 7 साल की 6 साल की उम्र से भी आप किसी को भी ये अभ्यास करवा सकते हैं, बशर्ते करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर उसको अवॉइड करें। फायदा अगर आप इस आसन का कहेंगे तो इसके अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि इसमें 12 आसन होते हैं, मतलब पूरे शरीर का आपका व्यायाम हो जाता है। अगर 10 से 15 रोज और अगर बढ़ाते हुए आप जाएंगे तो आपको इसमें आपके बॉडी में ट्रिमेंडस चेंजेस नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम सूर्य नमस्कार किस तरीके से करते हैं। तो ये अभी आपने देखा सूर्य नमस्कार। इसी तरह से रोज 2, 4, 5, 10 ऐसे करते हुए इसके भी आवर्तन आप 15, 20, 25 आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अर्धचक्रासन। पहले हम जान लेते हैं कि अर्धचक्रासन किसे नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क है या कहीं पे भी बल्जिंग है, उनको अर्धचक्रासन नहीं करना चाहिए। इसके फायदे अगर आप देखेंगे तो लंग्स का कैपेसिटी ये बढ़ा देता है, लंग्स का ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी ये बढ़ा देता है, आपके मेरुदंड को लचीला करता है, और कहीं पे भी आपके बैक में मसल्स पेन है बहुत ज्यादा देर तक बैठने की वजह से, तो उसको रिलीज करना शुरुआत कर देता है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इस आसन को कैसे किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि हम अर्धचक्रासन किस तरीके से करते हैं। आप शुरुआती दिनों में इसके 1-2 अभ्यास से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसके आवर्तन आप बढ़ाते जा सकते हैं। अब हम बैठने वाले कुछ आसन करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या फायदे होते हैं। अभी जब हम पहला आसन जो करने जा रहे हैं वो है वज्रासन। आपने नाम से ही समझ लिया होगा, वज्र मतलब फौलाद। ये आसन का नाम ही ऐसा है कि वो आपके शरीर को फौलाद जैसा बना देता है। तो देखते हैं कि किसने इसको नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए, जिनको भी नीज में कोई प्रॉब्लम है या नी रिप्लेसमेंट किसी का अगर हुआ है, उन्होंने ये आसन नहीं करना है। जानते हैं इसके फायदे क्या है। तो याद रखिए, वज्रासन नाम की ही तरह है। अगर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठते हैं तो पूरा खाना डाइजेस्ट बहुत अच्छी तरीके से होता है। एक्चुअली होता क्या है, वज्रासन में जब हम बैठते हैं उसके बाद में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसे हमारे हार्ट को पूरे 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके फिर से हमारे हार्ट में वापस आना होता है, उसका वो टाइम बच जाता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इन सबको ऑक्सीजनरेटेड ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। यही ब्लड बाकी और जगह न घूमते हुए हमारा शरीर हमारे इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन के तरफ ब्लड सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप देखेंगे वज्रासन के फायदे, तो जिसको भी कॉन्स्टिपेशंस है, जिसको भी गैस होती है, स्टमक ब्लोटिंग वो फील करते हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है, पैनक्रियाटिक कोई अगर उनको इश्यू होते हैं, इंडाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वज्रासन किस तरीके से किया जाता है। ये वज्रासन की स्थिति है। मेरुदंड को सीधा रखें, पैर मोड़कर उसके ऊपर बैठ जाए, दोनों हाथ अपने नी पे रखें और सीधे डीप ब्रीदिंग करते रहें। पहले इसका अभ्यास
आप कुछ मिनट बैठकर कीजिए। धीरे धीरे जैसे आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने देखा वज्रासन। अभी हम वक्रासन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वक्रासन किसे नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी को स्लिप डिस्क है या बल्जिंग है या फिर स्टमक में यूट्रस रिलेटेड कोई इश्यू है या फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको वक्रासन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या है। तो वक्रासन में भी आपके लेग्स के, थाइस के मसल्स और आपके बैक के, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू के सारे मसल्स उनको स्ट्रेंथन मिलती है। आपके शोल्डर मसल्स को और नेक के मसल्स को भी स्ट्रेंथन मिलती है। आप काफी रिलैक्स फील करते हैं और बहुत देर की वजह से अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी स्पाज्म है आपके बैक में तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो अभी आपने देखा वक्रासन, पहले हमने दाहिने पांव से किया, सेम आप लेफ्ट पांव से भी कर सकते हैं। और एज आई सेड, पहले 1-2 प्रवर्तन इसके करें और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से आपका अभ्यास बढ़ता जाए उस तरीके से उससे 10 से 15 या 20 आवर्तन आप हर रोज कर सकते हैं। तो अभी बैठने के बाद के 2 आसन हमने देखे। अब हम लेटने के आसन देखेंगे जो हम पेट के बल लेट के करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए है। तो दिस डेज दे आर हैविंग बैक इश्यूज मोर देन अदर्स। सो हम अभी पेट के बल लेटकर वो वाले आसन देखेंगे जो उनको बैक पेन से रिलीज कराएंगे या उनको आराम देंगे। तो पहला आसन हम करेंगे भुजंगासन। तो आइए जान लेते हैं कि भुजंगासन किसको नहीं करना चाहिए। तो याद रखें कि जिनको भी बल्जिंग है या स्लिप डिस्क है उन्होंने डॉक्टर की सलाह से ही ये आसन करना चाहिए। और फायदा अगर हम देखेंगे भुजंगासन का तो लोअर बैक यानी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या मिडल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर शोल्डर मसल स्पाज्म, इन सभी में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने मिलता है। ब्लड फ्लो होना शुरुआत हो जाती है बैकबोन में अच्छी तरीके से और मेरुदंड काफी लचीला हो जाता है। और इसका नाम भी आपने देखा होगा कि भुजंगासन है। आप जब ये आसन करते हो तब आपके शरीर की आकृति सांप की तरह हो जाती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अभी आपने देखा अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। आप अपने अगर बैकबोन में कोई भी तकलीफ है तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के साथ में इसको करिए। अब हम देखते हैं मकरासन, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।